وہ اپنا شوق پورا کر لیں. ہم نے تو فیصلہ دے دیا ہے. ہم نے یہ نہیں کہا اچھا بھی دیکھیں گے, سوچیں گے, کریں گے. آپ ہمارا پانی بند کرو گے, ہم آپ کے خلاف اعلان جنگ کریں گے. آپ ہمارا پانی بند کرو گے, ہم آپ کا سانس بند کریں گے. آپ کی جو گچی ہے نا, گچی, اس کے اوپر انگوٹھا رکھ کر آپ کا سانس بند کریں گے. اگر آپ کا ایک میزائل بھی آ گیا تو ہماری طرف سے تو 200 میزائل آ جائیں گے. پھر آپ کہاں جائیں گے, کہاں بھاگیں گے؟ ہم تیار ہیں, ہمیں کوئی ڈرانے کی کوشش نہ کریں. ایک ہفتہ پہلے ہم نے آپ کا ایجنٹ پکڑا ہے, کل بشر کے بعد دوسرا تیسرا پھر پکڑا ہے ہم نے, کہ ہندوستانی قوم کو یہ اب سوچنا ہے کہ انہوں نے اس پاگل سے جان چھڑانی ہے یا ملک کی تباہی کی تقدیر لکھنی ہے. یہ فیصلہ اٹھاتے ہیں یہ مودی صاحب. یہ اسکرپٹ ہوتا ہے مطلب ایک فلم بنانے کا, فیوچر کے اندر وہ فلم بناتے ہیں نا, آپ کو پتا پاکستان کے ہر واقعے کے اوپر فلم. تو یہ جو ایڈونچر کرنے جا رہے ہیں, یہ فلم بنانے جا رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں بالی ووڈ کی فلم بنا لوں گا, آپ فلم بنانے کے قابل ہی نہیں رہیں گے. تو اس لیے یہ جو مسخرہ پن ہے, یہ جس طرح جوکر پن ہے, یہ جوکر کا لفظ بہت اچھا استعمال کیا ہے, یہ آپ کو زیب نہیں دیتا اور نہ ہم موقع دیں گے کہ آپ بالی ووڈ کے اندر وہ فلم بنائیں, اس کا اسکرپٹ یہاں سے لکھیں. اس کی نوبت اب نہیں آئے گی. آپ کی ٹریڈ کو بند کر دیا, کسی تیسرے ملک سے بھی ٹریڈ آ سکتی ہے, نہ جا سکتی ہے, ٹریڈنگ ہو سکتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کی چیخیں نکل گئی ہیں. صرف 2 دن ہوئے, چیخیں نکل گئی ہیں. آپ کی تمام فضائی جو آپ کی ایئر لائنز ہیں, وہ اور 10 دن گزرے تو انشاءاللہ وہ دیوالیہ ہو جائیں گی اور آپ کے گلے کو پکڑیں گی. آپ کی عوام آپ کے گلے کو پکڑے گی, آپ کے ایوانوں تک وہ آئے گی. وہ کہیں گے ہمیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ اگر وہاں پہ بلاسٹ ہوا ہے یا فائرنگ ہوئی ہے یا کسی جگہ دہشت گردی ہوئی ہے, تو بجائے اپنی ایجنسیوں کو اکاؤنٹیبل کرنے کے آپ نے ایک ہمسایہ ملک کے اوپر الزام لگا دیے. پہلے اپنا تو جواب دیں, پہلے اپنی اکاؤنٹیبلٹی تو کریں ہمارے ساتھ. تو اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں پوری قوم کو اور پوری دنیا کو کہ ہمیں انہوں نے دھمکی دی تھی, ہم نے عمل کر دیا. خدائی حدود بند, ٹریڈنگ بند, اور ہم نے تیاری شروع کر دی. یعنی میں ریلوے کے وزیر کی حیثیت سے آج میں نے پورے پاکستان میں جہاں جہاں میرے ریلوے اسٹیشنز ہیں, ہم نے اپنے سولجر جو ڈیسک ہیں, فرنٹ ڈیسک, وہ قائم کر دی ہیں. اس کے اوپر لکھ دیا کہ یہ صرف ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ وہاں پہ آئیں گے, انٹرٹین ہوں گے. ہماری جو لاجسٹک ہے ریلوے کی, وہ ہم نے پاک فوج کے ڈسپوزل پہ چھوڑ دی ہے. اور جتنا وہ اپنا بڑا بڑا جو اپنی ٹینک ہیں, دوسری گنے ہیں, وہ جہاں سے مرضی اس کو لے کے جائیں. ہم نے پورے اپنے افسران کو, اپنی پورا ٹرین سسٹم کو پاک فوج کے, آپ سمجھے کہ ان کی ڈسپوزل پہ حوالے والی بات بھی ہے, ڈسپوزل بھی ہم نے اس کو کر دیا ہے. ہمارے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہندوستانی قوم کو یہ اب سوچنا ہے کہ انہوں نے اس پاگل سے جان چھڑانی ہے یا ملک کی تباہی کی تقدیر لکھنی ہے. یہ فیصلہ یہ ہندوستانی قوم پہ ہے. یہ فیصلہ میرا نہیں ہے. ہم نے تو اپنے ملک کی جغرافی حدوں کی حفاظت کرنی ہے. اور جس طرح میری لیڈرشپ یہاں نواز شریف صاحب نے, میں نے آپ کے بڑے خواب تھے, اس کو چکنا چور کیا ہماری لیڈرشپ نے. اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے رہا ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید نے بنیاد رکھی, اس کے بعد جتنے حکمران آئے اس نے اس ایٹامک پاور کی حفاظت کی, اور جا کے آخری جو 28 مئی 1998 کو میرے لیڈر وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے آپ کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 6 دھماکے کیے. تو اب آپ اندازہ لگا لیں, اگر آپ کا ایک میزائل بھی آ گیا تو ہماری طرف سے تو 200 میزائل آ جائیں گے. پھر آپ کہاں جائیں گے, کہاں بھاگیں گے؟ ہم تیار ہیں, ہمیں کوئی ڈرانے کی کوشش نہ کریں, نہ ہم ڈرنے والوں میں سے ہیں. اور یاد رکھیے گا, یہ مس ایڈونچر آپ کے گلے پڑ جائے گا. یہ مس ایڈونچر آپ کے گلے پڑ جائے گا کہ آپ پاکستان کے اندر آئیں گے تو پاکستان تیار بیٹھا ہے آپ کی ہر موومنٹ کا جواب دینے کے لیے, تیار بیٹھا ہے. اور اسی طرح تیار ہے جیسے میں نے پہلے دہرایا ہے کہ آپ کے پنجاب 5 ایٹامک بلاسٹ کے مقابلے میں ہم نے 6 کیے تھے. آج ہماری سرحدیں, آج ہمارا نیوکلیر پاور, ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں. ہم نے اپنی نیوکلیر پاور کو بڑا سنبھال کے رکھا ہے, لیکن وہ صرف دکھانے کے لیے نہیں ہے, کتابوں میں لکھنے کے لیے نہیں ہے,
وہ हमने अपनी हिफाजत के लिए बनाया, हिफाजत के लिए। यही तो वजह है कि पूरी दुनिया में और खास तौर पे तुम्हें पता है कि हम अगर पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे तो ये पाकिस्तान हम पे वो काम करेगा कि हमारी आने वाली नस्लें भी जो है तौबा करेंगी, तौबा करेंगी। और आप तौबा कर लो। मैं वजीर रेलवे की हैसियत से कहता हूं, पूरी पाकिस्तानी कौम की हम एक कौम होकर लड़ेंगे। सिंधी, बलोच, पख्तून, पंजाबी, जीबी से ताल्लुक रखने वाला, आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाला, एक मुट्ठ होकर, एक मुट्ठी के साथ हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे। हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारे आपस के मकतबे के हवाले से, फिक्र के हवाले से इख्तलाफात हो सकते हैं, रंग, नस्ल, जुबान के हवाले से इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन अपने नजरिए, अपने जुग्राफिये के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। और जिसको अब इख्तलाफ होगा वो उसके लिए भी पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी जाएगी, उसके लिए भी पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी जाएगी। मैं खुद कहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम अपनी फौज के साथ, अपने शाहीनों के साथ उनकी पुष्ट पर खड़े हैं। और उसके लिए माल तो बड़ा आसान सी बात है, उनकी इखलाकी हमायत यह भी बड़ी आसान सी बात है। मेरे पास एक लीगल वेपन है, 2 है, 3 है, उन सब के साथ मैं वजीर रेलवे की हैसियत से भी और बाकी लोग भी जिनके पास ये चीजें हैं, हम अपनी फौज के शाना बशाना दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे। ये ऐलान है हमारी तरफ से। ये ना सोचिएगा कि हम ठंडे ठंडे ये बातों में से गुजर के जाएंगे। ये पूरी एक तारीख है आपकी दहशतगर्दी की, और पाकिस्तान की एक तारीख है कि पाकिस्तानी कौम ने किस तरह दहशतगर्दी में जनाजे उठाए हैं और किस तरह हमने उस दहशतगर्दी का मुकाबला किया है। और आज भी हम उस दहशतगर्दी का शिकार हैं और उस दहशतगर्दी का मुकाबला हमारी कौम कर रही है। हमने एपीएस का वाला बहुत बड़ा वाकया, वो हमारे सीनों में आज भी वो जख्म जो है वो हरे हैं। जाफर एक्सप्रेस वाले जख्म हरे हैं। यहां 50-50, 100 लोगों से ब्लास्ट किया है। अभी एक हफ्ता पहले हमने आपका एजेंट पकड़ा है, कल बुशर के बाद दूसरा तीसरा फिर पकड़ा है हमने। उसके जरिए भी तहकीकात हो रही है। तो आखिर में मैं अपनी बात को समेटते हुए दुश्मन को हमने मैसेज दिया है कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो अपनी हुकूमत के पीछे खड़ी है। मैं बिलावल भुट्टो की उस स्टेटमेंट को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि हम चारों भाई जो हैं, उन्होंने चारों का जिक्र किया, मैंने बीच में जीबी का भी जिक्र किया, आजाद कश्मीर का भी जिक्र किया। हम इकट्ठे दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे। और इसी तरीके से बाकी जो मजहबी जमातें हैं वो सब इकट्ठी हो गई हैं, जो सियासी जमातें हैं सब हाँ, कुछ ना आकबत अंदेश जो पहले से पाकिस्तान में रहते हुए, इसके खाते हुए, इसके इक़्तिदार से लुत्फ अंदोज होते हुए आज फिर वो दुश्मन की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उनको छोड़ दें। आज वो इर्रेलेवेंट हो गए हैं, वो पाकिस्तान की सियासत से भी इर्रेलेवेंट हो गए हैं और पाकिस्तान के नजरिए से भी और इसके जोग्राफिये से भी। तो उनको छोड़ के पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो खड़ी है। तो मैं इस पे आप सबका शुक्रगुजार हूं कि इतनी बड़ी तादाद में आप आए। दुश्मन को एक वाज़ेह पैगाम मैंने दे दिया है। इंशाअल्लाह ताला अपने लोगों की नुमाइंदगी करते हुए हम सरहदों पर जाकर दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे। भाई साहब, ये बताइएगा, हिंदुस्तान का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो शहीद सिंह बोरा हो, वो पुलवामा हो या पहलगाम हो, उनके अपने जनरल और उनके अपने गवर्नर ये बयान देते रहे हैं कि ये जी हिंदुस्तान के अंदर से ये कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, जंगी हालात जाहिर है, तो हिंदुस्तान के अंदर जो उनकी अपनी अवाम है वो भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। इवन जो उनकी सियासी अपोजिशन की जो अलायंस का जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी ये सवाल किए हैं। तो पाकिस्तान इसको सफारती सतह पे इन चीजों को क्यों कैश नहीं करा? देखिए, सबसे पहली बात तो कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने, आपने देखा होगा कि जितने उनके अपने हमारे दोस्त ममालिक हैं उनको तो फौरी तौर पर सारी सूरत हाल से आगाह किया। उसके बाद आप इस वक्त देखिए लम्हा ब लम्हा फॉरेन ऑफिस जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हिंदुस्तान की हर बात को और दुनिया को बता रहा है, यूएनओ को बता रहा है, यूके को बता रहा है, यूरोपियन यूनियन को बता रहा है। अपने तमाम लोगों से जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स का राब्ता हो चुका है। तो इसलिए सफारती सतह के ऊपर हम उसको बेनकाब कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने अपनी सरहदों की हिफाजत भी करनी है। हमने सिर्फ एक तरफ नहीं रहना। प्रायोरिटी हमारी अपने लोगों की हिफाजत। अगर हमारी
खुदा न खास्ता एक भी शहरी की जान जाएगी ना, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि उनकी भी 2 की जानी चाहिए। उसके मुकाबले में उनके फिर हम उस जगह के ऊपर हमलावर होंगे, हम किसी मासूम बच्चों पे नहीं, औरतों पे नहीं, हम इंशाल्लाह उनकी फौजी तनसीबात को सबसे पहले निशाना बनाएंगे। बड़ा देखिए, पहली बात तो ये बड़ा अच्छा आपने जोकर का लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं भूल गया कि इनको तो बॉलीवुड कहते हैं मेरे ख्याल, लॉलीवुड तो हम है, बॉलीवुड कहते हैं। नहीं, बॉलीवुड ना एक इंडस्ट्री का नाम है। और ये जो भी कदम उठाते हैं ये मोदी साहब, ये स्क्रिप्ट होता है, मतलब एक फिल्म बनाने का, फ्यूचर के अंदर वो फिल्म बनाते हैं ना, आपको पता है पाकिस्तान के हर वाक्य के ऊपर फिल्म। तो ये जो एडवेंचर करने जा रहे हैं, ये फिल्म बनाने जा रहे हैं कि आप समझते हैं कि मैं बॉलीवुड की फिल्म बना लूंगा, आप फिल्म बनाने के काबिल ही नहीं रहेंगे। तो इसलिए ये जो मस्खरापन है, ये जिस तरह जोकरपन है, ये जोकर का लफ्ज बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, ये आपको जेब नहीं देता और ना हम मौका देंगे कि आप बॉलीवुड के अंदर वो फिल्म बनाएं, उसका स्क्रिप्ट यहां से लिखें, उसकी नौबत अब नहीं आएगी। सवाल ये है कि नहीं, उसमें 2 चीजें देखें, वो बहुत रेयर हैं, थोड़े से लोग हैं जो उन पे तनकीद कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो अपने इंटेलेक्चुअल्स को, जिनमें एंकर्स हैं मेरे, जिनमें मेरे रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर्स हैं, जूनियर रिपोर्टर्स हैं, मैं उनको सलूट पेश करता हूं। उनका अंदाज़े बयां बहुत डिसेंट होता है। लेकिन जब आप इंडियन चैनल्स खोलें तो बात मलिक साहब अली जोकर का लफ्ज मैं इस्तेमाल करूंगा, रनिंग कमेंट्री हो रही होती है, रनिंग कमेंट्री हो रही होती है। आप बड़ी सोच के बात करते हैं, समझ के बात करते हैं, आप थोड़ा सा टाइम लेते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन तक का वक्त देते हैं कि बात करते हुए हमारी बात में सदाकत हो। लेकिन जब वो बात कर रहे होते हैं गैर संजीदगी के ऊपर, और पूरे का पूरा स्क्रिप्ट जो है वो बॉलीवुड का स्क्रिप्ट जो है उसको मद्देनजर रखकर वो सहाफत करते हैं। आपकी सहाफत में और उनकी सहाफत में बड़ा फर्क है। सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की हालिया तनाज़ा या कश्मीर के बारे में ईरान ने साजिश पेशकश की है, आप इसको किस निगाह से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि ईरान हमारा ब्रादर इस्लामिक मुल्क है, और ये बात उन्होंने अगर की है, सालसी की बात की है, तो सालसी की बात हम तो किसी हद तक सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। जिनसे सालसी करवानी है पहले उनसे पूछ तो लेना। सालसी वहां होती है जहां दोनों फ्री के, हाँ जी हमें ये सालिश मंजूर है। तो अगर उनको ये इस वक्त वो स्क्रिप्ट आया हुआ है बॉलीवुड वाला, तो वो पूरा कर लेना, वो अपना शौक पूरा कर ले। हमने तो फैसला दे दिया है, हमने ये नहीं कहा अच्छा भी देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे। आप हमारा पानी बंद करोगे, हम आपके खिलाफ ऐलान जंग करेंगे। आप हमारा पानी बंद करोगे, हम आपका सांस बंद करेंगे। आपकी जो गिच्ची है ना, गिच्ची, उसके ऊपर अंगूठा रखकर आपका सांस बंद करेंगे। जी, इस वक्त सारे सोशल मीडिया पे देखिए, हर जगह देखिए, इवन नेशनल टीवी पे देखिए, हर जगह आपको वो वीडियो नजर आ रही है जिससे खून खोलता भी है, मतलब ताज़ा होता है, जरा हमारा वो सेंटीमेंट जो है वो बढ़ते हैं। और ये वाले कई मनाजर जो हैं वो हिंदुस्तान को देखने पड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदा ताबिंदा रहेगा, क़यामत रहेगा। 24 करोड़ 25 करोड़ अवाम इसके रखवाले हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। मेहरबानी।